Hello students, how are you all? I hope you are doing well. I am your grammar teacher Sila. लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने आपका 9th चैप्टर पढ़ा था जो था आपका verbs with tenses. आज हम पढ़ेंगे आपका 10th चैप्टर जो है articles a, an and the. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. There are two types of articles. First is definite articles and second is indefinite articles. A and an are indefinite articles. The is called the definite article. जैसे कि मैंने आपको बताया a और an जो होते हैं वो indefinite articles होते हैं और the जो होता है वो आपका definite article होता है. Use of a and an. यहाँ पर अभी हम a और an का use देखेंगे. देखिए, you know that the letters a, e, i, o, u are called vowels. आपको पता है a, e, i, o, u vowels होते हैं. And all the other letters of the alphabets are called consonants. दूसरे जो बाकी के alphabets बचते हैं वो consonants कहलाए जाते हैं. A and an mean one. यानी कि जब हम a और an यूज करते हैं sentences में तो उसका मतलब one होता है. हम किसी एक चीज के बारे में ही बात कर रहे होते हैं. The use of a and an really depends on the sound with which a word opens, not on the actual letter with which it begins. If the word begins with a vowel sound, we use an before it. If it begins with a consonant sound, we use a before it. Examples. First देखिए, we saw an egg of ostrich. Second है, Rahul picked up an umbrella from the stand. Third है, gold is a metal. Fourth है आपका, Priya picked up a pen to write a letter. अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है स्टूडेंट्स, ए हम तब यूज करेंगे जब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा और एन हम तब यूज करेंगे जब हमारा जो अगला वर्ड है वो एक वॉवल से स्टार्ट होगा. तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिच, अम्ब्रेला, ये दोनों ही वर्ड्स वॉवल्स से स्टार्ट हो रहे हैं ओ और यू से, तो यहाँ पर एन लगा है. इसी तरीके से मेटल और पेन और लेटर ये वर्ड्स जो हैं ये एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनके आगे ए लगेगा. It is clear that it is the opening sound, not the opening letter, that matter will be clear if you look at the following examples. यहाँ पर आपको कुछ examples दिए हैं. A university, a useful thing, a uniform, a European, an hour, an honest man, an honor. We use an before the words are honest and honor because in these words the h at the beginning is silent. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने an यूज किया है are, honest और honor में, लेकिन ये शुरू तो एक कॉन्सोनेंट से है, लेकिन यहाँ पर ये साउंड जो कर रहे हैं वो अ की आवाज आती है, इसमें ओ की आवाज आती है, एक वोवल की आवाज आती है, इसलिए हम यहाँ पर an लगाते हैं. And a and n are called indefinite articles because they are not used to refer to any particular person, place or things. यहाँ पर हम an और a दोनों का ही इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि indefinite articles हैं, इनको हम किसी particular person, place या thing के लिए यूज नहीं कर रहे, उन्हें refer नहीं कर रहे. Fifth देखिए, she lived in a town far away from our city. Sixth देखिए, he put an umbrella on the table. In sentence 5, the town she lived in is not given a definite name or exact location, so we use the indefinite article a. Similarly, in sentence 6, no particular umbrella mentioned, so the indefinite article a and an has been used. जैसे कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पर हम जब टाउन, ये जो सेंटेंस हमने पढ़ा इसमें टाउन था, अब उस टाउन का नाम तो नहीं लिखा था कि वो कौन सा टाउन है, क्या है, तो हमने उसको रेफर करने के लिए ए यूज किया. इसी तरीके से एन अम्ब्रेला हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि वहां पर अम्ब्रेला को पर्टिकुलरली कोई सा मेंशन नहीं किया था, इसलिए ए और एन हम यूज कर सकते हैं. आगे देखिए, यूज ऑफ द. अभी हमने ए और एन का यूज देखा था, अब हम द का यूज देखेंगे. देखिए, वी कैन यूज द बिफोर अ नाउन when we want to speak of or refer to a definite or particular person, place or thing. The is therefore called the definite article. जैसे कि मैंने आपको बताया है स्टूडेंट्स, द हम तब यूज करते हैं किसी भी नाउन से पहले,
हम किसी का चाहे नाम ले रहे हो पर्टिकुलरली, या किसी प्लेस का, जगह का नाम, या किसी चीज का नाम, अगर हम डेफिनेटली उस चीज का ही नाम ले रहे हैं तो हम उससे पहले द लगाते हैं, उसको हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, पहला है आपका दिस इज द हाउस दैट साहिल बिल्ट। सेकेंड है गिव मी द बुक लाइंग ऑन द टेबल। थर्ड है आपका दिस इज द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। इन सेंटेंस वन, not any house but a particular house, a house that Sahil built is being pointed out। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहला जो सेंटेंस है उसमें एक पर्टिकुलर हाउस की बात की जा रही है। कौन सा हाउस? जिसको साहिल ने बनाया है। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलरली साहिल के घर की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने द हाउस लिखा था। इसी तरीके से सिमिलरली इन सेंटेंस 2 and 3, a particular book, a particular boy and a particular prize are being referred to। जैसे कि मैंने आपको बताया है, सेंटेंस 2 और 3 में पर्टिकुलरली किसी बुक की बात हो रही है, किसी एक लड़के की बात हो रही है, और किसी एक पर्टिकुलर प्राइस की, किसी चीज की बात हुई है। तो जब पर्टिकुलरली हम किसी चीज की बात कर रहे होते हैं, किसी नाउन की बात होती है, तो उससे पहले द लगता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आर्टिकल्स में यूज ऑफ ए एंड द का मतलब समझ में आया होगा, उन्हें हमें सेंटेंसेस में कब और किस तरीके से रखना होता है। आइए देखिए एक्सरसाइजेस। पहला है आपका ए सेक्शन जो है टिक द राइट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन पे क्लिक करके ब्लैंक्स फिल करने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, देयर आर डैश आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स? ऑप्शन है आपके 2, 3 और 4। बताइए स्टूडेंट्स आपके कितने आर्टिकल्स होते हैं? सो योर आंसर इज ऑप्शन सेकंड जो है 3 आर्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? ए एंड द। इसी तरीके से बाकी क्या आप अपने आप करेंगे। आगे देखिए सेक्शन बी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें ए और एन का यूज करके ब्लैंक्स फिल करने हैं। पहला देखिए डैश आर। आर जैसे कि मैंने आपको बताया एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो ओ का साउंड दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं एन आर। सेकेंड देखिए डैश चेयर, अ चेयर, क्योंकि चेयर जो है वो एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर ए लिखेंगे। थर्ड है आपका डैश एप्पल। एप्पल है, ए वोवल से स्टार्ट हो रहा है, तो वोवल से स्टार्ट होता है तो हम एन यूज लगाते हैं, तो हम लिखेंगे एन एप्पल। इसी तरीके से फोर्थ है आपका इंक पॉट, एन इंक पॉट। फिफ्थ देखिए आपका एन अनहैप्पी पर्सन, क्योंकि यहाँ पर ए यू से स्टार्ट हुआ है। इसी तरीके से बाकी क्या आप अपने आप करेंगे। आगे देखिए स्टूडेंट्स, सेक्शन सी जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द एज रिक्वायर्ड। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, इसमें जो भी चाहे ए हो, एन हो, द हो, जो भी रिक्वायर्ड होगा वो आप लिखेंगे। फर्स्ट देखिए विजडम इज डैश ग्रेट वर्च्यू। अब यहाँ पे क्या आएगा? ग्रेट लिखा है, जी लास्ट का हमारा जो मतलब ब्लैंक के बाद में जो वर्ड है वो जी से स्टार्ट हो रहा है। जी हमारा है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विजडम इज द ग्रेट वर्च्यू। यहाँ पर हमने द इसलिए यूज किया है स्टूडेंट्स, क्योंकि द ग्रेट वर्च्यू, ग्रेट जो वर्ड है वो एक पर्टिकुलर वर्ड है, इसीलिए हमने यहाँ पर द यूज किया है। सेकेंड देखिए ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट है, एच से कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, बट ओ का साउंड आता है, इसलिए हम लिखेंगे ही इज एन ऑनेस्ट मैन। थर्ड है सुनीता इज डैश गुड गर्ल। सुनीता इज अ गुड गर्ल। फोर्थ देखिए इंग्लिश इज नॉट डैश इजी लैंग्वेज। इजी, ई है, वोवल है, वोवल से पहले हम एन लगाते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इंग्लिश इज नॉट एन इजी लैंग्वेज। फिफ्थ देखिए देयर आर 7 days इन डैश वीक। अ वीक आएगा क्योंकि डब्ल्यू है, वोवल नहीं है, तो ए से हम लिखेंगे, इसलिए हम लिखेंगे देयर आर 7 days इन अ वीक। सिक्स देखिए वी वेंट टू सी द ताजमहल, क्योंकि ताजमहल पर्टिकुलरली हम किसी जगह का नाम ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे वी वेंट टू सी द ताजमहल। इसी तरीके से आप बाकी के अपने आप करेंगे। आगे देखिए स्टूडेंट्स सेक्शन डी। सेक्शन डी है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के कितने टाइप्स हैं स्टूडेंट्स? 3 टाइप्स हैं, ए एंड द। इनको आप एक्सप्लेन करेंगे। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन डिफाइन वोवल्स।
वोवल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वोवल्स होते हैं जिसमें हमारी जो टंग होती है वो हमें कहीं टच नहीं करनी होती, जिससे वो साउंड्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल A E I O U, आप बोल के भी देखेंगे, आप खुद फील करेंगे कि आपकी टंग कहीं टच नहीं हो रही है, वो हमारे वोवल्स होते हैं। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स वो लेटर्स होते हैं जो वोवल्स के अलावा होते हैं। हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, उनमें से A E I O U जो लेटर्स हैं उनको छोड़ के जितने भी हमारे लेटर्स बचे हैं वो सभी हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिनमें हमारी टंग टच होती है हमारे दांतों से, हमारे माउथ में इधर उधर। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आर्टिकल्स में यूज ऑफ ए एंड द समझ में आए होंगे। एक्सरसाइजेस हम लोगों ने डिस्कस की हैं, बाकी की आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।